Okay, today we'll start Unit 7 Ocean Transport. Hello. Now, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, today we'll start ocean transport. Yesterday we start little bit, but better to start again. Ocean transport is basically needed for bulk quantity, long distance, and for less expensive. Means if you transport goods through ocean, it is compared to less expensive for long distance routes. Means where you are transporting goods from one continent to another continent, where the geographical proximity is not such that you can connect through road or rail. Then you have to transport goods through water. There are many continents who are surrounded by water. Only option left in transporting goods is ocean transport. In that case, we'll use ocean transport. Then your significance. What is the significance of your ocean transport? You are surprised to know that almost two-thirds of the world trade are through ocean trade only. So this is the importance of ocean trade. जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है उसकी 75% ट्रेड किसके थ्रू हो रहा है? ओशन के थ्रू हो रहा है. सो दैट्स द importance of ocean trade nowadays. First point is revolution in the field of transportation. Means now what earlier happened when goods are transported through traditional ships, where it is only take the help of wind to go to a certain direction. In those days, transportation through ship is very difficult. But now, due to the modernization technique, due to the communication strong network, due to the replacement of wood in case of steel in preparation of ship or in ship built of ship, you can transport goods through any distance. Means in any distance without any hazard or in safety conditions, or all measures have been taken now. So that is the revolution in the field of transportation. So that's why more goods are transported through ocean, because all of you know in total uh, earth is surrounded by three-fourths of water. So definitely there will be many countries who will be only surrounded by water. चारों तरफ पानी ही पानी. There is no road connectivity. So to those countries, if you want to transport goods, you have to definitely take the help of ocean transport. Then foreign exchange. How it will help in foreign exchange? Suppose a country has lot of ships. सब मान लो कैसे ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है. गिव स्मॉल एग्जांपल. in between I am speaking in Hindi. Don't if you don't understand Hindi, then tell me. Suppose I have a cab owner. I have 4, 5, 6, 10 cabs. I have giving cabs on rent, and then I earn my livelihood. मेरे पास 5-10 कार है. मैं एक एक कार को रेंट पे दे रहा हूँ. Then I can earn that rent as an income. Similarly, if a company has larger ship company, large infrastructure, जो पोर्ट वगैरह है वो ज़्यादा है, then country क्या करेगा ना? Country will help those who require this facility. सपोज जब इंडिया में रॉकेट लॉन्च करने का मशीन नहीं था. Suppose we want to launch a satellite, but we have no launch pad, no machine that will launch that satellite. In this case, what will India do? Either India take the help of Russia, take the help of USA. दो उनके पास जाके क्या बोलता था, भाई मेरे को थोड़ा हेल्प करो, मेरे को लॉन्च करना है अपना पैर. In that case, they will start some rent. Similarly, those countries who have no better infrastructure regarding port and ocean transport, if they want to export, they take the help of those countries where it is available. So in this case, if a country provides ship or provides ship service to some other country, from where it can earn foreign exchange. Means in this way, a country can earn foreign exchange by providing ship as a rent, as a port as a rent. Then it is capital intensive. Means I told in yesterday that to build a ship
You require lot of capital. It duration is too long, 1 2 years long. So it is, so if you don't have capital, then you cannot prepare a or make a ship. So ship, it is totally on based, totally depend upon large amount of capital, so that any country can make it. Then long duration I already explained that will take 1 to 2 year to make a ship. एक ship बनाने के लिए हमें 1 से 2 साल का टाइम लगता है. So that's why these are the significance of ocean transport. Then what are the important features of ocean transport? First one is international environment. When a country, when a ship cross its territorial boundary, सपोज इंडिया का शिप है, ये इंडिया का बाउंड्री क्रॉस कर गया, मीन्स इज एंटरिंग टू सम अदर बाउंड्री ऑफ अदर कंट्री. तो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, अगर कोई वन शिप क्रॉसेस दैट बाउंड्री, दैट मीन्स दैट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कंट्री. सपोज इंडिया का क्रॉस कर रूसिया की तरफ जा रहा है एक शिप, at the point it crosses India's boundary, it comes under Russia jurisdiction, it comes under some other country jurisdiction. इसमें क्या होता है ना, then international environment comes into picture. जब तक शिप हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर है, that means there is no international environment. When it crosses India's boundary, then any change in Russia's policy or any change in Russia's environment, that will affect our ship. So as ship is basically operated between two countries to transport goods, so any change in the environment in those countries will affect the shipping business. So that's why international environment is an important feature of ocean transport. Then large financial resource and capacity. I already told this point yesterday that it required huge amount of financial resources. Third another point is it requires capacity utilization. If the ship don't achieve break-even point, means the point where its all operating costs are in recovered, it will operate in loss. So it will difficult to operate a business in a period of loss. If it is continuously making losses, then it is difficult to operate. So for achieving break even or for achieving profit, the ship should be full, or the capacity of the ship should be full, or should be of 80-90% full, otherwise it will become difficult. Third one is competition. Now because of heavy dependence on ocean transport or shipping business, more number of countries or more number of companies who are entering into this ship business, तो उनको पता चल गया कि ये शिप जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है ट्रेड के ऊपर, सो इसीलिए दे आर एंटरिंग टू दिस बिजनेस. देयर आर सम कंट्रीज whose 20-30% income, national income, comes from this shipping business. This one country I can name it is Singapore. Singapore is so much strategically located, और उनका जो पोर्ट फैसिलिटी है और जो शिपिंग बिजनेस है उनका इतना अच्छा है that will add to 20-30% of the national income of the सिंगापुर. छोटा सा कंट्री है, बट वो ऐसा मतलब घेरा, पानी से घेरा हुआ है, और सब कंट्री जो जाएंगे शिपिंग लेके, दे विल ऑल गो थ्रू सिंगापुर. ये बोल सकते हैं आप that Singapore is strategically located in case of ocean transport. Every country has to pass through Singapore. Every country means those who are going through. And in Singapore, they have developed the shipping facility or port in so modernized way that any loading, unloading, everything is without man's effort you can do it. All machine will do it. So imagine how important now competition is. If you want to run shipping business, you have to compete with different countries to run your business. Then establishment of shipping business in third world countries. And third world country means here underdeveloped countries, those countries who are not developed.
In those cases, developed countries trying to export goods to those countries, अगर हम उसको export करने के लिए चाहेंगे, then we have to establish port facility there, because without port, when your ship will go, it will not unload that goods. If you remember, or if you knew about the British Raj, at that time, British developed railways, British developed port. Because why they developed? Because when they sending goods from India to their country, bringing goods from their country to India, they need port facility. They need train for communication. They need road for communication. So for their own benefit, for that business to grow, they develop all those facilities. For all those facility also, though Indian people also enjoying that facility, but it is mainly because of their benefit. So in third world countries or in underdeveloping countries, if developed country want to export, कुछ सामान भेजना है, कुछ सामान लाना है, then you need port facility, because without port a ship cannot start, a ship cannot load or not, nothing can do. For if you, for aircraft you need airport, for ship you need port, otherwise it cannot be possible. Then cost and service depend on port facility. Port facility means modernization. Modernization means how fast you can load goods, how fast you can unload goods, how fast you can maintain the ship. These are the facility. जिस पोर्ट में ये सारे फैसिलिटी ज्यादा होगा, उसमें पैसा ज्यादा होगा. You are all watching movies. I think all of you watch movies. If you stay in Bhubaneswar, if you want to Kesari Hall, it will cost of the ticket will 100 rupees. Similarly, you want to go to BMC Mall, the cost will be 200 more 220. What difference you will get? Only enjoyment, benefit, large screen, seating capacity is good, every facility is good. So the port who will provide you more facility, he will charge you more. There is nothing new in this. So the port where all things are modernized, everything they can do with less time, they will charge more comparatively where the port facility is low. Then comes डेवलपमेंट ऑफ योर कमर्शियल शिपिंग. जो कमर्शियल शिपिंग था वो डेवलप कैसे हुआ? दिस we celebrate a festival in Odisha. If you know, I don't know. This is Kartik Purnima. That Baliyatra is at that time Baliyatra was in Kotak. What is the point of telling this? That festival is celebrated because at that time Odisha people were going for business with their boats, and then they are coming back with golds, many jewelries and all those things, because they went to Maldives and all other countries for selling goods what they produce. Then they are again coming back to Odisha with jewelry, with valuable goods. So to celebrate their returning, we celebrate that festival. So remember, in those days when they are using boat, only there was a terpal, there was a cloth, I think, in this boat. That boat will run by the direction of the wind. जहां जहां हवा देता रहेगा वहां जाता रहेगा. वो एक जमाना था. उसके बाद आया स्टेम इंजन. दैट मीन्स आउट ऑफ स्टीम गैस और जो स्टीम you have to run that ship. After steam, then comes diesel engine. So for diesel engine, there is no problem of that steam and that wind direction, because if you full your diesel tank is full, you can go any direction. Earlier the structure of the body structure of the ship is mainly built of wood, जो कार का बना हुआ होता था. That means कार का अगर बना हुआ है, that means after some days there will be leakage,
it will, because when water constantly touches your boat structure or body of the boat, then it will be start destroying it, because that is salt water to destroy wood. That was a problem. So it is also replaced by stainless steel by iron. If stainless steel is used, there is no risk of destruction easily, no no chance of rusting, all those things, or gradually this will develop. Then come to operation. How a ship operates. First is, there are some start, static forces, there are some dynamic forces. The operation of ship, for there will be two forces operating in a ship. Starting forces means वेट स्ट्रक्चर, जो शिप का वेट स्ट्रक्चर है दैट विल वेरी विद इन लेंथ. जैसे एक 6 फुट का इंसान इंसान का वेट और एक 5 फीट इंसान का वेट अकॉर्डिंग टू मेडिकल सेम नहीं हो सकता. सिमिलरली एक लॉन्ग शिप, एक स्मॉल शिप, दो सेम नहीं हो सकता. योर लेंथ एंड वेट दैट शुड बी बैलेंस, अदरवाइज इट विल प्रॉब्लम. देन hydro pressure, when ship is running in a water, that is hydro pressure. पानी का जो प्रेशर होता है उसको भी संभालना पड़ेगा इसको. देन कॉन्सेंट्रेटेड लो वेट, शिप का अगर वेट थोड़ा कम है और वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सर्टेन पार्ट, उसको भी इसको हैंडल करना पड़ेगा. देन डायनामिक फोर्सेस ए शिप हैज टू बी, और टाइड्स, वेव, पानी का पिच होना आके बोर्ड पे, दीज आर द डायनामिक फोर्सेस. There are two important things we will discuss in these forces. One is shear forces, another is center of gravity. Shear forces means balancing of weight. Balancing of weight means, imagine in a ship there are four parts, means like small home. Suppose in a total home there is 4 rooms. Similarly in ships there are 4 parts. The goods will be stored in these 4 parts, different goods will be stored in different parts. Suppose मैं मान लूं कि चार parts का 4 name, 4 names are there. In that those 4 rooms in the ship, goods will be loaded. So while loading, you should take care of that these 4 rooms will be, the weight of these 4 rooms will be balanced. If it will not balance, suppose left hand or right extreme rooms are fully loaded and in the middle they are less loaded, so it will create imbalance. So this shear forces means balancing of weight, so that it will not shaken up. If you load some heavy things on a cycle, in carrier you load certain heavy things, but in your in front of the cycle there is no weight. Then what will happen? The cycle will be fallen down. वो साइकिल गिर जाएगा, नीचे वाला जो पीछे वाला पोर्शन है कैरियर का वो उठ जाएगा, because there is no balancing of weight. So in order to carry a heavy thing on carrier, you have to put a heavy thing on the front, so that there will be balance of weight. The shearing forces means only balancing. Earlier days, when there is no machine, no computer, nothing, when they load goods, they only guessing. हाँ, ये चारों जो रूम है और 4 आइसोलेटेड पार्ट है,
कि चारों में वेट समान है, ओनली बाय लुकिंग, ओनली बाय सीइंग, हाँ ये चारों में समान है। बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स एंड कंप्यूटर्स, नाउ कंप्यूटर्स इज टेकिंग केयर ऑफ दिस। हाँ किस पार्ट में वजन हेवी लोड हो गया, निकालो कुछ सामान, और किस में कम लोड है, दिस पार्ट इज डन बाय कंप्यूटर्स। Because when only watching, a human accuracy cannot be that much that a computer can do. So in that weight machine is fitted there, then what machine is connected to computer, then the computer बताएगा अभी कितना वोल्ट होगा, कितना वोल्ट होना चाहिए, now it is balanced, then you will go. This is called shear forces, means balancing of weight. Only the rooms available or the space available for in a speed, in a space from start to bottom, there should be a balance of weight, otherwise ship will be imbalanced. Then center of gravity. Center of gravity means when you put certain things in a carrier. Suppose imagine in a car there are 5 people are sitting. If you don't understand this, then let me know. I will again make you understand. Suppose in a car there are 5 persons are sitting. If you add the weight of these 5 people, it will be more than 200 kg or more than that. If you take average of 50 kg one person, then 5% means 50 into 5, 2.5 quintal. In this case, the car will run smoothly. But if you replace human beings with goods, आप एक कार में क्या करोगे, 2.5 क्विंटल का सामान लोड कर दोगे, then you drive the car. If you take human beings with you, then you drive the car will go in proper way, mean there will no second of कार हिलेगा नहीं, अपने आप जाएगा वो. अगर सब ऊपर रिप्लेस ह्यूमन बीइंग विद गुड्स, देन यू ड्राइव, देन यू रियलाइज कार एक साइड का जो पोर्शन है वो शायद टिल्टेड होगा, या अगर आप स्पीड लेके जाओगे देन कार क्या होगा, थोड़ा हिलना स्टार्ट कर देगा, और जो आप थोड़ा टर्निंग फर्निंग में आपको स्लो लेना पड़ेगा, अदरवाइज कार क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा. ये क्यों होता है, ह्यूमन होने से क्यों नहीं होता है, गुड्स होने से क्यों होता है. ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जो अर्थ का पावर है जो अपने तरफ खींचता है, वो ह्यूमन होने से क्या होता है, ह्यूमन बैलेंस होकर बैठ रहा है. ह्यूमन का जो प्रेशर है ऐसा भगवान ने बनाया है, वो अर्थ में वो अपने आप को बैलेंस करके चलता है, इसीलिए वो कार में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. बट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग इफ यू पुट दैट गुड्स, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. इन दैट केस you will face problem. Similarly, in case of ship, when heavy amount of goods are loaded, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक पॉइंट पे हो जाता है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस जहां पे तो शिप का फुल वेट आके रह जाता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो आप एनीथिंग लोड करोगे अनलोड करोगे, दैट अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो इसीलिए ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो पॉइंट ऑफ वेट है वो ज्यादा ना हो. अगर ये ज्यादा हो गया देन देयर इज चांस ऑफ द शिप विल go deep into the water and it will sink. You will not find the ship. That ship will go under the water. Am I clear now? Up to this, am I clear? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Any question on up to this? Any question you want to ask up to this, or I will go ahead? Then we come from type of ships. First one is your conventional ships, where small
bins or small rooms are there to take goods with them. मतलब एक बड़ा सा शिप हो गया, उसमें छोटा छोटा कमरा टाइप का है, या छोटा छोटा अपार्टमेंट टाइप का है जहाँ पे आप सामान ले सकते हो। होगा कन्वेंशनल शिप। मतलब जब पुराना, बहुत पुराने काल में, मतलब पुराना मतलब बिफोर 1960 जब ये था, तब ये क्या हुआ, तो शिप ऐसा ऐसा होता था, स्मॉल स्मॉल रूम होता था, उसमें ट्रांसफर करते थे। देन उसके बाद ड्यू टू डेवलपमेंट इन goods and demand of the ship increases, we use container type of container ship। मीन्स शिप में एक कंटेनर होगा जहां पे गुड्स लोड होगा, कंटेनर लोड होगा शिप में, देन शिप विल गो। Previously, goods are directly loaded to ship. Yeah, in this case, goods are not directly loaded. Goods are loaded to container, and container will be loaded to ship. That is called container kind of ship. Then tanker. Tanker, for why tanker is used? Mainly because of to transport liquid and gas items. अगर आपको पेट्रोलियम और some gases को ट्रांसपोर्ट करना है, then you have to use tank kind of ship. Otherwise they cannot transport liquid and gases. Then dry bulk carriers. Here the total ship will be like a big room where you can transport iron ore, food grain, means the goods where that is bulk in quantity, having less value, you can transport in bulk carriers. Then then oil bulk means जहाँ पे only you can transport oil. Car carriers means the goods where this car, buses, truck that can be transported from one place to another. Then another is roll on roll up, mercantile with wheel means एक सामान आप, you have seen that certain heavy equipments in that they have wheel, उनको क्या मतलब छोटा छोटा चक्का फिटिंग किया जाता है उनका नीचे। क्यों फिटिंग किया जाता है? so that you can push them up to certain distance, because it is too heavy to carry them up, to lift them up। और उनके पास चक्का होगा, जैसे होता है हमारे पास ट्रॉली बैग है, हम उसको उठाने की जगह हम उसको लेके आ जाते हैं, मतलब टान के, so that it will be very easy। same trolley bag you will lift and carry on your shoulder, it will difficult, but same trolley bag if you, there is a wheel, you can push it up, then it will very easy। Similarly, in case of some merchandise where bulk, some heavy weight, small wheels are fitted so that you can push them onto the ship. Again, at the time of unloading, you can unload them with less difficulty or less inconvenience। That is called roll on roll up। मतलब चढ़ के चले जाना, फिर उतरने के टाइम उतर जाना। This is called roll on and roll up। Then last ship, ये क्या होता है last ship? ये जो लास्ट शिप होता है, दैट शिप कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल इंडिपेंडेंट शिप। फिर अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ द मूवी द टाइटैनिक। इफ यू हैव सीन, जब टाइटैनिक डूब रही थी तब ऊपर से जो इमरजेंसी सिस्टम था, वहां पे देखा होगा आपने, छोटा छोटा शिप को उन्होंने नीचे नीचे डाला, छोटा छोटा शिप को उनमें 4-5 लोग डाल के नीचे डाल दिया, सो दैट शिप विल ऑटोमेटिकली, वो डूबेगा नहीं, वो चलता रहेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ लास्ट शिप, व्हाट हैपेंस, सपोज in a country, the rivers surrounded to the country is very narrow rivers, means large ship cannot go through that river। इसमें अब क्या करते हैं ना, बड़ा सा शिप लेते हैं, जहां समंदर का बेसिन है वही शिप खड़ा कर देते हैं, वहीं से फिर जो सामान छोटा छोटा शिप में जो लोड हुआ होता है उसको छोड़ देते हैं कि जाओ, यू डिलीवर टू द डेस्टिनेशन, देन कम टू शिप। सपोज आप एक सामान लेके जाना चाहते हैं, आपका जो घर है, जिन सोसाइटी, आप एक नया घर बनाना चाहते हैं जहाँ पे रोड इतना नैरो है कि आपका बड़ा बड़ा जो व्हीकल है, ट्रक है, you cannot transport your ita and balis, then what will you do? आप
कहीं से ले, जहाँ पे मेन रोड है वहां पे तक लेके आ जाओगे, देन यू विल टेक द हेल्प ऑफ ट्रॉली, छोटा छोटा मिनी ट्रक, मिनी छोटा छोटा टेम्पो टू ट्रांसपोर्ट. Similarly here, because of the difficulty in transportation with the large ship, small ships, loaded ships are used to deliver the goods to the actual doorstep or to the actual destination. बिल्कुल घर के पास देने के लिए ये छोटा छोटा शिप यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे इतना वाटर का फ्लो नहीं होता, और वाटर जो है नेरो नेरो रिवर होता है, उसमें बड़ा शिप जा नहीं सकता, इसको लार्ज शिप. क्लियर? हेलो हेलो. Yes, sir. Clear, sir. ओके. देन कम्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप. जब हम शिप लाएंगे, उसे से हम गाड़ी लाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं. जैसे जब शिप विल बाय शिप, दैट शिप हैज टू बी रजिस्टर्ड. पहले क्या था, ब्रिटिश नेविगेशन एक्ट 1660 था. दैट वाज मींस फ्रॉम दोज डेज, फ्रॉम 1660 द रजिस्ट्रेशन इज कंटिन्यूइंग. ये जो शिप का रजिस्ट्रेशन है तो 1660 से चल रहा है. As per the law, all ships which operating outside the territory of a country that should be registered with the otherwise it will be difficult to identify the ship. अगर रजिस्ट्रेशन, अगर आज के डेट में इंडिया में कहीं पे भी आप गाड़ी लेके जाओ, कहीं पे भी अगर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है, देन बाय क्लिकिंग ऑन ए कंप्यूटर और बाय टेकिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको आपका एड्रेस मिल जाएगा, आपका घर कहाँ पे मिल जाएगा, एवरीथिंग दे कैन गेट बिकॉज ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन. सो इन शिप ऑल्सो टू आइडेंटिफाई, अगर कहीं कोई शिप जा रहा है, कहीं पे दूसरा कंट्री जा रहा है, लॉस हो गया, कहीं गुम हो गया, देन दैट यू कैन फाइंड दैट शिप ओनर. हाउ? बिकॉज ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन नंबर. सिमिलरली लाइक योर vehicles, 2-wheeler, 3-wheeler, everything. सम कंट्रीज क्या करते हैं, बोलते हैं शिप कहाँ रजिस्टर्ड होगा ना, शिप का ओनर जहां पे है, दैट शिप विल बी रजिस्टर्ड देयर. सपोज मैं शिप का ओनर हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, शिप विल बी रजिस्टर्ड इन इंडिया. अदर कंट्री क्या बोले ना, इट इज द प्रिविलेज ऑफ और इट इज द प्रायोरिटी ऑफ द शिप ओनर. जो शिप ओनर है उसका मन है वो शिप कहाँ पे रजिस्टर करना चाहेगा. मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मैं शिप इंडिया में खरीदा, मैं चाहता हूँ कि मेरा शिप यूएस में रजिस्टर हो, देन आई कैन डू इट. सो सम कंट्रीज कंपलसरी कर देते हैं कि ओनर का कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट ना, ओनर का द कंट्री ऑफ द ओनर विल बी द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द शिप. और लोग क्या करते हैं कि सम जहाँ पे ओनर चाहेगा, देन यू कैन रजिस्टर द शिप. सो एक शिप इंडिया में बन के यूएसए में रजिस्टर हो सकता है, और एक शिप यूएसए में बन के इंडिया में भी रजिस्टर हो सकता है. देन योर एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा. फर्स्ट एडवांटेजेस इज कस्टम क्लियरेंस. अगर आपका शिप go outside your domestic territory, then you need custom clearance. ये जो कस्टम क्लियरेंस मिलेगा ये बिना रजिस्ट्रेशन का मिल नहीं सकता. टू नीड कस्टम क्लियरेंस यू हैव टू register your ship. Then spare parts can be purchased without custom duty. Means suppose your ship is going in the deep sea. आपको लगा कि मेरा कुछ स्पेयर पार्ट जो है वो भी खराब होने वाला है, सो आई वांट टू परचेज इट. सो तो आप इंडिया में हो नहीं उस टाइम पे, देन द नियरेस्ट पोर्ट यू विल अराइव, at that point you will purchase that spare parts. So in order to purchase that, अगर आपका शिप रजिस्टर्ड है, देन आपको कस्टम ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा. वहां का जो कस्टम ड्यूटी है वो देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज शिप इज कमिंग टू योर कंट्री,
फॉर सर्विस, सो कुछ पार्ट खराब हो गया, दैट मीन्स आपको उसका कस्टम ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा इफ इट इज रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, यू आर परचेजिंग सम स्पेयर पार्ट्स इन दो देयर कंट्री, देन यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। देन लिमिटेड लॉस लाइबिलिटी। लिमिटेड लॉस लाइबिलिटी मीन्स अगर आप, आई विल अगेन गिव एन एग्जांपल ऑफ बस। एक बस में आप जा रहे हो, बस फेसेस एन एक्सीडेंट। जब बस में एक्सीडेंट हुआ, जो persons who those persons who are traveling with the bus, they will claim कि हमें कंपेंसेशन दो। इन दैट टाइम बस वालों को बुलाया, ओनर को बुलाया जाएगा, देखा जाएगा बस का लाइसेंस है कि नहीं, बस रजिस्टर्ड है कि नहीं, बस का परमिट था कि नहीं, जो ड्राइवर को ड्राइविंग दी बस उसका लाइसेंस है कि नहीं, बस का इंश्योरेंस है कि नहीं, ड्राइवर का इंश्योरेंस है कि नहीं, जो कंज्यूमर हुआ, जो पर्सन हुआ ट्रैवलिंग, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है बस का, वो इंश्योरेंस है कि नहीं। और दिस डॉक्यूमेंटेशन इज गुड और यू हैव डन एवरीथिंग इज इन प्रॉपर मैनर, देन जो लाइबिलिटी है किसका, बस ओनर का, वो अपने आप कम हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ यू हैव डन रजिस्ट्रेशन, यू हैव डू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर शिप को कुछ होता है वहां पे विदाउट योर नेग्लिजेंस, देन द लॉस विल बी लिमिटेड टू द ओनर। जो ओनर है उस पर लॉस कम जाएगा, बिकॉज शिप में जितना गुड्स जा रहा है दैट इज हेवी क्वांटिटी, द कॉस्ट विल बी हेवी। सो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराओगे उसमें, देन आपको जो लाइबिलिटी है दैट विल बी टू मच, इट विल डिफिकल्ट टू पे। सो इन दिस केस if you have done registration on all those things, then your liability will be less, that is called limited loss liability। आपको लॉस होगा बट उसमें लिमिटेड होगा, बिकॉज यू हैव डन ऑल योर पार्ट। देन योर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन एंड मॉर्गेज। ट्रांसफर करने के लिए हो शिप को, अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी शिप पर काम नहीं करता, आई वांट टू गिव पावर ऑफ अटॉर्नी टू सम अदर पर्सन, और मेरे को शिप को मॉर्गेज रखना है और मेरे को शिप को बेचना है। इन दिस केस यू नीड रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट सेल, मॉर्गेज और ट्रांसफर। थर्ड हो गया इंश्योरेंस। टू कवर दैट शिप विथ इंश्योरेंस, और फॉर इंश्योरेंस कवर यू हैव टू रजिस्टर योर गुड्स, अदरवाइज देयर विल बी no insurance of your goods। Then the procedure of registration, up to this it is clear, up to this it is clear? Yes, sir. Yes, sir. Any question? नो सर। Any question? Okay, then the procedure of registration। अभी हमने पढ़ लिया कि जो रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान होगा, और what are the benefits of registration already discussed। अभी now हम will look into what are the procedure of registration। हम जो registration का है उसका procedure क्या है। सेक्शन 22 to 62 of मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1952, ये जो 1952 का ये सेक्शन है वो क्या करता है, they stipulate the condition under which a ship has to be registered। ये शिप को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या कंडीशन करना पड़ेगा, ये सब इस सेक्शन में लिखा गया है। ये बोला है कि एवरी इंडियन शिप इन एक्सेस ऑफ 15 टन्स, मतलब जिस शिप में मोर देन 15 टन्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और जिसका कैरिंग कैपेसिटी मोर देन 15 टन्स हो, दैट शिप मस्ट बी रजिस्टर्ड। और 15 टन से कम हो देन ये रजिस्टर नहीं करने से चलेगा। बोला ये शिप रजिस्ट्रेशन के लिए
you have to produce a certificate of registry. कल अगर जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करोगे तब कोई रजिस्ट्रेशन माना नहीं जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये जो एक्ट है ये इंडियन शिप या we are talking about Indian ship only because this act is in India. सेक्शन 2262 मार्शन शिपिंग एक्ट 1958 ये इंडिया का एक्ट है। सो इसमें इंडियन शिप किस किस को बोलेंगे हम ना, जो शिप को एक इंडियन सिटीजन ओन कर रहा है और एनी कंपनी हु ओन इट दैट इज एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, वो शिप ओन कर रहा है, दैट आल्सो इंडियन कंपनी। कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट किया है वो भी ओन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इंडियन शिप। अनदर क्या है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो ओनर ऑफ द शिप। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 अंडर रजिस्टर्ड है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो शिप ओन कर रहा है, दैट इज आल्सो इंडियन शिप। दिस इंडियन एक्ट empowers certain persons or empowers certain officer who will register the ship। जो इंडियन एक्ट है वो कुछ ऑफिसर को एम्पावर मतलब पावर दे रखा है कि आप रजिस्टर कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्ट एम्पावर्स योर कमिश्नर, गवर्नर or an custom official to register the goods, sorry to register the ship। इंडियन एक्ट एम्पावर क्या है कुछ ऑफिसर को रजिस्टर करने के लिए, और ब्रिटिश एक्ट क्या है किसको क्या है, कमिश्नर को, गवर्नर को और एनी एजेंट को क्या है शिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑल एंट्रीज विल बी मेड ऑन रजिस्टर बुक। ये जो रजिस्टर बुक पोर्ट के पास होगा, जितना सारा एंट्री है क्या होगा ये सब रजिस्टर बुक में एंट्री करना पड़ेगा, देन ओनली इट बिकम रजिस्टर्ड। देन इंडियन एक्ट लिखा है, इंडियन एक्ट 10 शेयर एंड ब्रिटिश एक्ट 64 मींस ये जो शिप का ओनरशिप है इंडियन एक्ट बोल रहा है कि दैट कैन बी मैक्सिमम 10 पार्ट्स मींस 10 शेयर्स। शेयर मींस योर ओनरशिप मींस अगर आप 1 लाख रुपया देके शिप खरीद रहे हो सो उसमें 10 लोग मैक्सिमम 10 लोग रहेंगे, मतलब ईच वन का कंट्रीब्यूशन 10,000 हो सकता है। आप अकेले भी 1 लाख खरीद सकते हो, 2 लोग खरीद सकते हो, 3 लोग खरीद सकते हो, बट इट कैन गन अप टू मैक्सिमम 10%। 10 लोग से ज्यादा ओनरशिप इंडिया में एक शिप का हो नहीं सकता। बट सिमिलरली ब्रिटिश एक्ट व्हाट से ना, देयर विल बी 64 शेयर पार्ट, मतलब आप अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्ट देयर कैन बी मैक्सिमम 64 ओनर्स ऑफ ए शिप। ये लिखा गया है 10 मेंबर्स ऑफ इंडियन एक्ट, 64 मेंबर ऑफ ब्रिटिश एक्ट। उसके बाद बोल रहा है नो ओनर फॉर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन पार्ट, एक छोटा फ्रैक्शन समझते हो आप लोग सब, फ्रैक्शन पार्ट के लिए ओनर नहीं हो सकता। कोई नहीं बोलेगा कि मैं एक छोटा सा 1/3 पार्ट के लिए मैं ओनर बनूंगा या छोटा सा पार्ट के लिए मैं ओनर बनूंगा, उसमें ओनर नहीं दिया जा सकता। तब उसके बाद जॉइंट ओनर डीम टू बी वन ओनर। सपोज हम लोग 3-4 लोग मिलके जॉइंटली उसमें एक भाग ले रहे, सपोज शिप को पहले डिवाइड कर दिया 10 पार्ट में, 10,000 हो गया, पर एक के पास 10,000 नहीं है, ही विल गो फॉर अनदर 2-3 पर्सन्स, वो लोग 2,500 देके एक शेयर खरीद रहे हैं, मतलब दोज 4 पर्सन्स आर जॉइंट ओनर्स। दिस फॉर ओनरशिप these 4 persons who are jointly purchasing one share, they are deemed to be one owner। समझ में आ रहा है? Am I clear? Hello? Yes, sir. Clear, sir. All of you understand what is joint owner? Joint owner?
All of you understand joint owners or not? Yes, sir. Joint owner means it will be treated as one owner only Oh, yes. for the Then, registration purpose. okay, right. A company or cooperative society can be owned by एक company हो गया, एक cooperative society हो गया. Those are legal body or perpetual entities. They have artificial presence. They can own the ship with their own name. जैसे हमने पढ़ा था, the basic feature of a company is the company can take property on its own name, can sell property on its own name, can sue other, can be sued by others with his own name. Company एक artificial person है जो कि because of registration its existence comes into picture. So ये कंपनी अपने नाम पे सारा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, एवरीथिंग कैन बी डन. सो कंपनी अपने नाम पे शिप भी खरीद सकता है. रजिस्टर बुक shows name of the ship and port. जो रजिस्टर बुक है जहां पे रजिस्ट्रेशन होगा वो बुक क्या शो करेगा, ये शिप का नेम क्या है, ये शिप नेम ऑफ द पोर्ट टू व्हिच दिस शिप बिलोंग्स एंड अदर इंफॉर्मेशन क्या है. In case of an individual or a company to be registered as owner or its agent, एक इंडिविजुअल कंपनी हो गया, अपने नाम पे ओनर हो सकता है और उसका एजेंट भी ओनर हो सकता है. डिटेल्स ऑफ टोनेज बिल्ड एंड अदर पार्टिकुलर, मतलब उसमें कितना कैपेसिटी लोड हो सकता है और अदर कहाँ पे शिप बनाया गया है. ऑल दोज ऑन इंफॉर्मेशन will given to the persons who will register it. That all this information will be recorded in the registry book. Then they will give you the certificate of registration. Then mechanics of registration होगा कैसे. Carried by registrars in the port registry. ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा, पोर्ट में होगा. जो those persons who are empowered by the government to register the ship, उनके पास ये जो रजिस्ट्री होगा. आप जाओगे, you submit all data to that person. That person will record in the registry. After recording, the person will submit the data to the shipping ministry, to the minister of shipping. वो रिकॉर्ड करने के बाद शिपिंग मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा. शिपिंग मिनिस्ट्री आफ्टर doing all the record verification or the document verification, they will send a surveyor. Surveyor means the person who will check the quality of ship, the information you have given all are right or not. जैसे आप LIC में सपोज LIC में किसी का लाइफ इंश्योरेंस कराए हो और ये मेक एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ए गोडाउन. आप एक गोडाउन का मालिक हो, उसमें आप इंश्योरेंस कराए हो कि गोडाउन में अगर कोई आग लग जाता है या चोरी हो जाता है, देन द LIC विल कॉम्पेंसेट यू. सपोज देन क्या हुआ, एक दिन एक्चुअल चोरी हो गया और इट कैचेस फायर, आग लग गया, देन सब सामान डिस्ट्रॉयड, देन यू मेक ए क्लेम टू द LIC कंपनी. जब आप क्लेम करोगे, LIC will not directly pay you. What LIC will do? LIC will send an officer who will come and inspect that actual में ये आग लगी थी और ये लगाया गया था, एक्चुअल में ये चोरी हुआ था या ऐसे झूठ मूठ का क्लेम है. That person is known as surveyor. So in this case also, after the document part is fulfilled, the government will send a person who will check the quality of the good, quality of the ship, everything we have, every information we have given, if clear, correct or not. Then the ship जो application registration for the application for registration, that must be by the owner or its agent. कौन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, the owner can apply or its agent can apply, no other person can apply. In this application of registration,
You have to declare the ownership. Means आपका पास इसका ownership है, that is called declaration of ownership. Then you have to declare that. You have to give certificate, हाँ ये सिर्फ मेरा ही है. Suppose आप एक बैंक से you have to take mortgage loan, आपके पास एक हाउस है और हाउस आपके पापा के नाम पे है और आप लोन लेना चाहते हो उस हाउस पे mortgage देके, then you cannot take. बैंक पूछेगा if this house is your name, बोलोगे no, then bank will not give you loan. So to get loan from bank by mortgaging your house, you have to own that house. Without ownership you cannot take the loan. So here for registration you have to declare that this ship is mine. Then place of built, ये जो ship तुम register करना चाह रहे हो, ये from where it was built, कहाँ से ये बनाया गया है. Then name of the ship approved by the authority. जब ship का नाम आप दोगे, it should be approved by the authority. Who are the authority? Authority कौन है यहाँ पे? और मैं तो अपना ship खरीद रहा हूँ, मैं अपना नाम दूंगा, authority क्यों चाहिए? मैं आई विल गेट मैरिड, मेरा बेटा लड़का लड़की कुछ होगा, मैं उसका नाम दूंगा, then I don't have to ask. Then for ship why it is needed? There was a naming act in India. For naming there was a act. Naming act, this act basically covers that you cannot give certain names to your ship. जैसे इंडियन फ्लैग हो गया, इंडियन, देयर आर सर्टेन नेम्स आर रिजर्व कि आप ये नाम दे नहीं सकते, आप इस नाम के आगे ये लगा नहीं सकते. देयर आर सर्टेन प्रीफिक्स सफिक्स वो रिजर्व बाय द गवर्नमेंट कि ये चीज आप लगा नहीं सकते. ये हो गया पहला कॉज. आपको वो चीज ध्यान में रखना है कि जो नेम रेस्ट्रिक्टेड है, जो नेम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट किया है वो नेम मैं ना दूं. Then another thing you have to take care of, because in registration there will be unique record of your ship. So अगर 5 ship का नाम सेम हो गया, then it will become lead to confusion to identify your ship. So ऐसा नाम आपको मतलब यूनिक नाम देना है, so that it will be identified among the ships. The ship also will be identified by the registration number. It also identified by the name also. So that will be approved by the authority. आप जो name दोगे, that should be approved by the authority. Then name of the ship, registry number and tonnage. मतलब ship का नाम देने के बाद ship का नाम, registration number और the capacity of the ship will be written clearly in bold letters or in big letters in the ship. जैसे हम अभी because of increase in accident, आरटीओ ने क्या बोल दिया कि आपका जो नंबर प्लेट है वो आगे भी रहना चाहिए, पीछे भी रहना चाहिए. Why? Because of so that it can be easily identified. Similarly, for in case of ship, वो बोल रहा है कि name of the ship, registry number and its capacity will be properly written in a manner so that it will be visible. Is it clear? सर Yes, सर sir. जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिप रे रजिस्ट्रेशन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे सेटा सर से माने अप्रूवल देबे जे कैपेसिटी ऑफ शिप. No, capacity of ସେମାନେ approval ଦେବେନି. यस सर. Capacity, suppose ତମେ you are buying a mini bus, you are buying a big bus. The capacity is not same for those two buses. For government fixes, for a mini bus you can 40 passengers you can carry. For a big buses you can carry 60 passengers. So according to the size of the ship, that capacity will be decided. Suppose you are making a big ship, the capacity will not be same as that you are making a small ship. यस सर. Definitely there will be standard set by government. Yes, क्या आप sir. इतना लंबा इतना बड़ा साइज होने से इतना लोग इतना कैरी कर सकते हो.
समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल ऑफ बस आई हैव गिवन यू. छोटा सा कार 3 पैसेंजर, बड़ा बोलेरो 8 पर्सन. सो इफ यू टेल कि गवर्नमेंट विल फीस कि बोलेरो में भी 3 जाएंगे, छोटा कार में भी 3 जाएंगे, तो इंजस्टिस टू पर्सन हु इज बाइंग बोलेरो एंड हु इज बाइंग कार. Am I clear? सर डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ शिप अथॉरिटी हो देगा माने रजिस्ट्रेशन नंबर. हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर वो जो डायरेक्टर जनरल शिप है वो एक पर्सन को एम्पावर किया गया है कि आप Yes, sir. सारे सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करोगे. सो आफ्टर रिकॉर्डिंग ही विल रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री से एक इंस्पेक्शन बंदा आएगा, वो इंस्पेक्ट करेगा, देन दैट गवर्नमेंट विल गिव यू रजिस्ट्रेशन नंबर. Yes, sir. Thank you, sir. देन ऑल्टरनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कब ये जो आप चेंज कर सकते हो, और टर्मिनेशन मींस एंड, तो कब आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो सकता है. अगर आप ओनरशिप में कुछ चेंज करना चाहोगे, अगेन दे विल हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्री. जब तक वो बुक ऑफ रजिस्ट्री में चेंज नहीं होता, until your new application or new data will be recorded in that registry book, your change will not happen or your change will not valid. तब तक आपका चेंज माना नहीं जाएगा. जब तक वहां पे रिकॉर्ड हो गया रजिस्टर बुक में, then it will be treated as changes. then terminate हो गया. terminate कब होगा? सपोज आप एक शिप लेके जा रहे हो, समुद्र बीच में झड़ तूफान आया, शिप डूब गया, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरिंग. उस टाइम क्या होगा? आप क्या करोगे? आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप सरेंडर कर दोगे. किसको? मिनिस्ट्री को हो, और या पोर्ट जहां पे आप रजिस्टर कराए होगे पोर्ट में, वहां जाके आप सरेंडर कर दो कि दिस शिप हैज बीन लॉस्ट, दिस शिप हैज बीन डिस्ट्रॉयड, सो आई डोंट नीड दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एनीमोर. ये हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. और रिन्यूअल कब होगा? सपोज एक सेम शिप गया है, बहुत दिन हो गया चला गया है समंदर में, वो वापस आ नहीं रहा है, तो आपको लगा कि दिस शिप हैज बीन लॉस्ट और उसमें कोई होप नहीं, देयर इज नो होप दैट दिस शिप विल अगेन कम बैक. बहुत दिन के बाद शिप कहाँ था, पता नहीं क्या हुआ था, after too many years the ship again come back. जब when there will no chance, there is no hope that ship will again come back, after that ship will come, then आपको एक जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा. जहाँ पे कोई होप नहीं था मेरा शिप वापस आने का, now it has been returned, then you have to renewal that certificate with the registry कि हमारा शिप नहीं आने का चांस था, अभी आ गया, मेरे को रिन्यूअल कर दो. ओके, समझ में आ गया? when टर्मिनेट होगा, when रिन्यू होगा, when चेंज होगा. Yes, sir. Okay. Then another thing is classification of shipping. Shipping service. Shipping service. Then होगा classification of service. Classification. Classification means there are different body, different societies who classify. How classify? I have given you one example, then you will understand what is the classification. All of you know what is credit rating agency. All of you know what is credit rating agency. पता है सबको? Yes, क्या sir. होता है? Yes, sir. Yes, sir. So, Civil code में. Sorry. Like Crisil Care. हाँ, like Crisil, exactly right. Like Crisil Care, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. इनका काम क्या होता है? ये सारे कंपनीज को ग्रेड करते हैं. कौन सा कंपनी ए ग्रेड में है, कौन सा बी ग्रेड में है, कौन सा सी ग्रेड में है, कौन सा A++ में है. ये क्यों ग्रेड करते हैं?
when investors should invest, they have no they have no financial expertise. Okay, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, जिनके पास कोई फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज नहीं होता है, वो क्या करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द रिव्यूअर और दे डिपेंड अपॉन द रिव्यू ऑफ थर्ड पार्टी हु इज एक्सपर्टाइज इन दैट फील्ड। मतलब मेरे को अगर कोई गाड़ी खरीदना है, मेरे को पता नहीं मैं कौन सा गाड़ी खरीदूं, देन आई विल विजिट टू ए पर्सन और विजिट टू ए vehicle expert who will tell me the different benefits of different car. Then after I will decide मेरे को कौन सा कार खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। Am I clear or not? Am I clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, the credit rating agencies gives rating to the companies so that by seeing these ratings, the investors will invest. Similarly, in case of SIP, these classification societies are independent body who will classify the SIPs according to their parameters. मैं वो कौन सा अगर वो कौन सा SIP को A देते हैं, कौन सी को B देते हैं, गुड क्लासिफिकेशन सोसाइटी किसी को अच्छे देंगे, किसी को बुरे देंगे। अगर अच्छे देने से क्या होगा ना, अच्छे देने से अगर वो इंडिपेंडेंट बॉडी आपको अच्छा बोल रहा है, दैट मीन्स आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, आप कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कर सकते हो। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, लोग आप पे यकीन करेंगे, हाँ अगर ये गिव ए स्मॉल एग्जांपल ऑन दिस। आप एक सामान जा रहे हो खरीदने के लिए, एक आईएसआई मार्क प्राप्त है, एक आईएसआई मार्क प्राप्त नहीं है। अब तो इसको आईएसआई पता है ना क्या है, सामान में जो आईएसआई मार्क रहता है वो पता है ना क्या आप लोग को, ये नहीं पता? हेलो हेलो हेलो। Sir, it is a sign of quality. हाँ, इट इज काइंड एग्जैक्टली। सो अगर आप आईएसआई मार्क प्राप्त सामान खरीद रहे हैं, देन आप यू आर श्योर दैट इसका क्वालिटी अच्छा होगा। अगर किसी के पास आईएसआई मार्क नहीं है तो आप सोचोगे इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट बॉडी आपको अच्छा रेटिंग दे रहा है, लोग क्या सोचेंगे, हाँ इसमें ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा होगा। अगर क्लासिफिकेशन सोसाइटी अच्छा नहीं है, देन इसका अच्छा नहीं होगा। अगर आप कहीं से उधार लेना चाहोगे, जिसको दे के जो सीप को दे के, अगर आपका क्लासिफिकेशन अच्छा है, देन आपको जल्दी लोन दे देगा, अगर नहीं है तो उसको नहीं देगा। So because of classification or because of this review of an independent body, the sheep will enjoy a lot of things. ट्रांसपोर्टेशन आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा उसका अच्छा होगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा उसका कम होगा। ज्यादा लोग आपको ज्यादा लोग will use your ship to transport goods. These are the benefit of classification by good society, classification society. Then structure of shipping. शिपिंग जो सर्विस है उसका क्या होगा, एक होता है बल्क कार्गो, एक होता है जनरल कार्गो। द शिपिंग सर्विस में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज बल्क कार्गो, अनदर इज योर जनरल कार्गो। बल्क कार्गो में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स जैसे बड़ा फर्टिलाइजर्स, कोल, पेट्रोल, फूड ग्रेन जाता है। और जनरल कार्गो में क्या आता है, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। ये जो दो कार्गो जाते हैं, जो शिपिंग सर्विस है वो टू टाइप का सर्विस होता है। एक हो गया लाइनर शिपिंग, एक हो गया ट्रांप शिपिंग। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ए बस अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइन शिपिंग एंड ट्रांप शिपिंग, देन आई विल कम टू शिप। आपको पता है एक लाइन बस, एक है रिजर्व बस।
जो लाइन बस कटक से भुवनेश्वर जा रहा है, अगर आप कटक से भुवनेश्वर जा रहे हो बाय राइडिंग दैट बस, आप कटक से चढ़े बादामबाड़ी से, वो लेके आपको भुवनेश्वर बारंग होते हुए तो ये फूलनगरा होते हुए आपको भुवनेश्वर पहुंचाएगा। उसका फिक्स स्टॉपेज है, वो फूलनगरा में रुकेगा, लिंक रोड में एक बार रुकेगा, जहाँ जहाँ रुक रुक के जाएगा उसका 10 स्टॉपेज है। फिर जाके बाणीबिहार में रुकेगा, सीआरपी रुकेगा, फास्ट में रुकेगा, फिर जाएगा बरमुंडा। ये हो गया लाइन बस। और रिजर्व, अगर आप रिजर्व करोगे, बोलोगे एक बस रिजर्व किया आपने, मेरे को कटक से भुवनेश्वर जाना है, तो क्या होगा, आप कटक से उसको भुवनेश्वर लेके गए, आपको रास्ते में अब वो डायरेक्टली जाएगा भुवनेश्वर, उसको कोई कोई और बनना नहीं है, डायरेक्टली गो टू भुवनेश्वर। और आप चाहते हो कि रास्ते में उसको रोक दो, मेरे को साथ चाय फाय पीना है बस को, आप बस को रोक के चाय पी सकते हो। ये होगा रिजर्व। सो ये जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया लाइन बस का, दैट इज लाइनर शिपिंग। तो सेकेंड एग्जाम्पल दिया ट्रांप शिप जो रिजर्व का, दैट इज कॉल्ड ट्रांप शिपिंग। लाइनर शिपिंग में क्या होता है, ये शिप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब एक सपोज मैं बोल रहा हूँ, एक शिप पारादीप पोर्ट से लेके हल्दिया पोर्ट होते हुए केरल जाएगा, मतलब द रूट इज फिक्स्ड। मेरे को पारादीप पोर्ट से निकलना है, उसके बाद हल्दिया जाना है, उसके बाद सपोज अलग अलग कोई पोर्ट जाना है, फिर उसके बाद अलग पोर्ट जाना है, ABCD जाना है, फिर अगेन आई हैव टू एंड माय जर्नी इन केरला। ये हो गया मेरा फिक्स्ड रूट, फिक्स्ड स्टेशन। कोई मेरे को अगर बीच में बोलेगा तुम हल्दिया जाके और घूम जाओ कहीं टुवर्ड्स आसाम, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मेरा लाइन फिक्स है। तो जिसको ये लाइन में सामान डिलीवर करना है, जिसको सामान कलकत्ता में पोर्ट में डिलीवर करना है, जिसको सामान उसके बाद A में डिलीवर करना है, B में करना है, ही यूज लाइन शिपिंग। मेरा जो शिपिंग का रूट है वो फिक्स्ड है, कहाँ कहाँ रुकेगा भी फिक्स्ड है, और जिसको जिसको ये शिप इस पोर्ट में सामान डिलीवर करना है, ही विल यूज माई शिपिंग, दैट इज कॉल्ड लाइनर शिपिंग। लाइनर शिपिंग में क्या होता है, दे गेव एन एडवर्टाइजमेंट कि शिप इतना तारीख को निकलेगा, इतना तारीख को पहुंचेगा, द शिप विल पासेस थ्रू दिस पोर्ट। अगर किसी को सामान इस पोर्ट के डिलीवर करना है, देन कॉन्टैक्ट अस, शिप विल अदरवाइज शिप विल डिलीवर। इसका जो टाइम ऑफ डिपार्चर है वो फिक्स रहता है। सपोज मेरे को नेक्स्ट मंथ का एंड में जाना है, देन आई विल गिव एन एडवर्टाइजमेंट कि दिस शिप विल डिपार्ट फ्रॉम दिस डेट। उस टाइम तक लोड हुआ ठीक, नहीं लोड हुआ तभी चला जाएगा, वो हाफ लोड हुआ तभी चला जाएगा, फुल लोड हुआ तभी जाएगा, कम लोड हुआ तभी जाएगा। इसका जो लाइन रूट है वो फिक्स है। सो इस रूट में क्या होता है, ये पहला एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं लोगों को कि इसमें क्या, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, शिप का नाम होता है, कौन सा पोर्ट ये जाएगा, पर डॉक ये विजिट करेगा उसका नाम रहता है, ये जो शिप है वो अप टू व्हाट लास्ट डेट इट कैन रिसीव कार्गो, ये कब लास्ट डेट कब तक ये सामान ले सकता है, मतलब सामान रिसीव कर सकता है वो रहेगा। देन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेलिंग कब है निकल के जाएगा, ये सब सामान, ये सब इंफॉर्मेशन रहता है किसमें, एडवर्टाइजमेंट में। इसका क्या होता है, फिक्स सेलिंग, फिक्स कॉल होता है। इसका जो गुड्स होता है वो क्या होता है, गुड्स सच एज लेदर, रेडीमेड, रेडी गारमेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब उसमें जाते हैं। इसमें और क्या रहता है, इसमें तारीफ चार्ट भी रहता है कि अगर पारादीप से हल्दिया जाएगा तो कितना रेट पड़ेगा, हल्दिया से फिर आगे जाएगा तो कितना रेट पड़ेगा, ये सब उसमें ये तारीफ रेट भी रहता है। लोग उसको तारीफ को देख के आपका मतलब 2-3 महीना एडवांस में ये क्या होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो गुड्स भेजेगा उस कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हाँ इतना पैसा में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं सेप्टेम्बर, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून, अगस्त 30 को मेरा शिप जाएगा, मैं रिसीव करूंगा सामान अगस्त 15 तक, रेट यही है, देन आई फाइनलाइज माई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये सब कुछ फाइनल हो गया। तो ड्यूरिंग दिस 2 मंथ, जुलाई अगस्त, जो फ्रेट का जो फ्यूल का प्राइस है वो कुछ बढ़ गया और चार्जेस बढ़ गया, देन आई कैन नॉट मॉडिफाई माई कॉन्ट्रैक्ट। मैं जितना रेट में
ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, मैं उसमें उतना रेट में मेरे को सामान लेना पड़ेगा। सो इन दिस केस आई हैव टू पे इनकर हेवी लॉसेस, मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसके बाद ये रेट चेंज हो गया, देन आई हैव टू फॉर दिस आई हैव टू इनकर लॉसेस फॉर दिस। मैं पहले ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि ये जो शिप है वो चला जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ हाफ फुल फुल और एनीथिंग। सो इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का चांस बहुत कम है, फॉर दैट the ship may achieve break even और may not achieve break even। देन और हो गया ट्रांप शिपिंग, मतलब इसमें एक शिपर पूरा शिप को हायर करता है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। मेरे को कलकत्ता से ऑस्ट्रेलिया जाना है, आई हायर फुल शिप, पूरा सामान मेरा रहेगा, मैं उसको लेके वो सीधा शिप निकलेगा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाके रुकेगा, मीन दैट इज कॉल्ड आई एम रिजर्विंग दैट शिप, दैट इज कॉल्ड ट्रांप शिप। इसमें क्या होता है जनरली द कार्गो जो जाता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कार्गो का, ये कार्गो होता है लो वैल्यू, सो दैट इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, बल्क वेट हेवी वेट सामान, और रिक्वायर नो एक्सेप्शनल फैसिलिटी, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं चाहिए होता है, जैसे नॉर्मल शिपिंग होता है ऐसे ही होता है। बट ये क्या होता है, इसका लाइन फिक्स नहीं है, ये एक जगह से निकलता है डायरेक्टली और एक जगह पहुंचता है, ये लाइन नहीं आता, ये रिजर्व होकर जाता है, वन शिप वन पर्सन। ओके, दिस यूनिट इज ओवर। Any doubt on this total unit you can ask me, then I will move to your next unit, unit 8. I will teach you unit 8, and unit 9 you will read on your own, because in unit 9 there is nothing make you understand, only theory part. Then unit 10 I will teach on next class. Unit 7, any doubt? No, sir, no doubts. No, sir. Okay. Then unit 8, मल्टी मोडलाइजेशन। मल्टी होगा एक से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन योर मोडलाइजेशन मीन्स मोर देन वन ट्रांसपोर्ट। ये मल्टी मोडलाइजेशन व्हाई डेवलप्ड, सपोज I want to transport goods from Bhadrak to Chennai. For transporting goods to Chennai, I have to transport the goods from Bhadrak to the Paradip port. Then goods will loaded to ship. Then it will be transported. In this case, what happened? I load the goods to truck or any road carrier. Again, that goods will be unloaded, again packed, again loaded in ship. Then we will go to Chennai. So in order to reduce this multiple handling, एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया जो एक बार में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, एक बार में उसको हम पैकिंग कर देंगे, सो दैट देयर विल बी नो फर्दर लोडिंग, फर्दर अनलोडिंग, डायरेक्टली ये सामान जाएगा, डायरेक्टली शिप में लोड होगा, इट विल गो। ये जो रास्ते में लोडिंग अनलोडिंग ये मल्टीपल हैंडलिंग जो खर्चा है वो बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टी मोडलाइजेशन। नाउडेज एवरी ट्रांसपोर्ट इज यूजिंग 2-3 ट्रांसपोर्ट। एक ही ट्रांसपोर्ट में कोई काम हो नहीं रहा है, रेल वाटर, रेल रोड, every whatever transported to you, that may be used 2 transport or more than 2 transport, two modes of transport. So in this way our basic objective should be such that कि हम एक बार में पैकिंग ऐसे कर ले कि ऑल ट्रांसपोर्ट के लिए फिट हो जाए,
वो ट्रेन में जाए तो ठीक है, सेल में जाए तो ठीक है, और शिप में जाए तो ठीक है। अनदर थिंग व्हाट कम्स टू माइंड कि यार एक ही पर्सन आए जो कि हु विल टेक द फुल रिस्पांसिबिलिटी कि सामान यहाँ से ले और जाके जहाँ पहुंचाए वहां पहुंचा दे। मेरे को ये समझ मतलब आई डोंट वांट टू टेक द बर्डन ऑफ अरे वो ट्रक में लेके जाओ फिर उसको वहां से ट्रेन में ये करो वो करो। मेरे को चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आई नीड ओनली वन पर्सन who will give me that from Bhadrak to Chennai you have to pay 2 lakh rupees for transportation, that is his responsibility, I don't take any responsibility। वो कार में ले गाड़ी में ले कहीं पे भी ले he will take goods from here and deliver the goods in Chennai। that is if this is can be done then I will be very happy, I will be less of burden। ये जो प्रॉब्लम आया धीरे धीरे और टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मल्टी मोडालिज्म इज डेवलप। जो पहले था ये जो मल्टीपल हैंडलिंग था, मतलब एक मोड से लेके दूसरे मोड पे लोड करना, फिर उसको फिर और दूसरे मोड पे लोड करना, ये जो मल्टीपल हैंडलिंग था उसमें क्या होता था जनरली लॉट ऑफ गुड्स हैव बीन वेस्टेड। अगर आप एक सामान को यहाँ पे एक अनलोड करो फिर लोड करो, आप जितना अच्छे से भी लोड करो कुछ ना कुछ सामान वेस्टेज होना ही होना है। सो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल हैंडलिंग देयर विल बी वेस्टेज इन गुड्स। देन बिकॉज ऑफ दिस वेस्टेज और बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल हैंडलिंग और फियर ऑफ वेस्टेज द इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी वेरी हाई। अगर जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओगे, सपोज आप एक 30 साल के बंदे हो, आप इंश्योरेंस करा रहे हो अपना, और एक 50 साल के बंदे ने इंश्योरेंस करा रहा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसका ज्यादा पड़ेगा? दोज हैविंग 50 years, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी नो एट द एज ऑफ 50 दैट पर्सन इज मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस। उसको डिजीज होने का बहुत चांस है। दो इन टुडे सिनेरियो देयर इज नो गारंटी that 20% ये 20-year-old will not die, 50-year will die, but generally people consider age as a major factor for diseases। so if you take insurance health policy after age of 50 or after age of 50, then you have to pay more insurance premium because of reason I told you। in this case, because of this wastage and multiple handling, if you want to insure your goods, then you have to pay a huge insurance premium because insurance company know अरे ये सामान लेके जाएगा वहाँ लोड होगा अनलोड होगा इतना वेस्टेज होगा, so I have to pay charge more, otherwise I cannot do it। then ये दोनों चीज को हटाने के लिए यूनिटाइजेशन मार्केट में आया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटाइजेशन डेवलप किया गया। यूनिटाइजेशन में क्या हुआ ना, बोले कि इंक्रीज द साइज ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है जो और दो सामान जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका साइज इंक्रीज कर दो। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा ना, इसका तो हैंडलिंग है वो हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज छोटा छोटा पार्ट में दिखेगा नहीं दिखेगा, और बड़ा सामान में आप लेके जाओगे देन इसमें वेस्टेज का खर्चा कम रहेगा और हैंडलिंग भी इजीली हैंडल हो सकता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा कम हो जाएगा। तो ये हो गया जो पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था हैंडलिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट का, यूनिटाइजेशन क्या किया, हैंडलिंग का जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम कर दिया, जो इंश्योरेंस कॉस्ट था वो भी कॉस्ट को कम कर दिया क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। then another new concept came in, containerization। कंटेनर आपको पता है कंटेनर क्या होता है, और कंटेनराइजेशन मींस कंटेनर में सारे सामान लेने को बोलते हैं कंटेनराइजेशन। कंटेनर उसके बाद आइजेशन कंटेनराइजेशन। कंटेनर किसको बोलते हैं, इसमें लिखा है मैंने स्लाइड में भी दे रखा है कि इट इज इक्विपमेंट, इट इज ए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट डिफाइंड बाय आईएसओ, मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया है। कंटेनर क्या है
एक आर्टिकल है या ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, इसका काम क्या है ना, इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द कैरेज ऑफ गुड्स। क्या काम है उसका, इसका काम है गुड्स को कैरी करना, और ऐसे कैरी करना कि अगर ये वन और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज भी हो तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैरेज द गुड्स दैट मे बी इन वन मोड, मे बी इन मोर देन वन मोड, विदाउट लोडिंग एंड अनलोडिंग। ऐसे कैरी करना कि वो चाहे एक मोड में ट्रांसपोर्ट हो या मोर देन वन मोड में ट्रांसपोर्ट हो, हमें लोडिंग और अनलोडिंग का कोई झंझट नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दिस लोडिंग एंड अनलोडिंग पार्ट। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या था कंटेनराइजेशन का, ना ऐसे ट्रांसपोर्ट करो जो कि कॉस्ट रिडक्शन हो, जिसमें कॉस्ट कम हो। ठीक है, पहले एस्टिमेट किया गया था कि बिफोर कंटेनराइजेशन जो पहले हैंडलिंग था, इंश्योरेंस कॉस्ट था, ऑलमोस्ट तो 40% कॉस्ट आ जाता था। सो बिकॉज ऑफ दिस कंटेनराइजेशन दिस 40% कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। जो 40% कॉस्ट ये हो जाता था, ये रिड्यूस हो जाएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेनराइजेशन? Yes, sir. Yes, ओके, sir. देन नीड फॉर कंटेनराइजेशन। जो कंटेनराइजेशन आया उसका नीड क्या था, ये जो अब वही ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये जो लिमिटेशन था कन्वेंशनल ट्रेडिंग का, ये जो पहले जो था कन्वेंशनल ट्रेडिंग, जो पहले शिप में लेके जाते थे, उसमें जो सामान ट्रांसपोर्ट करते उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, और उसको हम समझ लेंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो कंटेनराइजेशन आया उसका क्या नीड था। पहले जो कन्वेंशनल शिपिंग था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन कन्वेंशनल शिप देयर आर स्मॉल रूम्स और स्मॉल अपार्टमेंट टाइप्स, इन दैट गुड्स विल बी stored. Suppose there are four apartments, four apartment type rooms, in that goods will be transport. So here you have to take into consideration, suppose ये जो शिप निकलेगा तुम्हारा पारादीप से, जाएगा हल्दिया, देन आफ्टर some place, then after some place, then Kerala. Means ship will start from Paradip, then Haldia, then two other ports, then Kerala, some port. So if this is the scenario, then how will you load the goods? आप क्या सोचोगे, जो स्टार्टिंग में जो जो जब स्टार्टिंग में जो रैक हो, स्टार्टिंग में जो रूम है, उसमें हम वही सामान लोड करें जो कि हल्दिया में उतारा सके। आप अगर छोटा छोटा गाड़ी में गए होंगे, मतलब जो कि लोकल में चलता है, ट्रैकर टाइप और कैंटर टाइप, ये सब टाइप, इसमें लोग को कैसे बिठाते हो आप? सपोज गाड़ी स्टार्ट फ्रॉम भद्रक टू भुवनेश्वर, some person will get down at Panikoili, some will Jarka, some will चंडीकोल। उसे क्या करते हैं, जो पानीकोइली उतरेंगे उनको थोड़ा आगे रखो, जो उसके बाद जारका उतरेंगे उनको उसके पीछे, चंडीकोल उसको उसके पीछे। ऐसे क्यों करते हैं कि सो दैट उतरने के टाइम पे इट विल बी मोर, जो बिकॉज जो पानीकोइली का जो बंदा उतरेगा उसको अगर आप पूरा बस में पीछे रखे रखोगे, देन उसको बस रुकेगा, वो आएगा, then it will take time. Are you getting my point, what I'm trying to make you understand? Yes, sir. So in this case, when there is, so in conventional ship the goods are arranged in such a way so that when the first port will reach, they can easily unload the goods. Then some second port, goods will be immediately unloaded. If goods will arrange in this way, then there will be no delay in port. ये सामान आपको ध्यान रखना है। सो आप जैसे भी कैसे लोडिंग नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान करना है।
सेकेंड थिंग, बिना जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल शिपिंग था, उसमें अगर आप कोई सामान आप ले रहे हो, जो कि सपोज यू आर कैरिंग टोमेटो और यू आर कैरिंग सम हार्ड गुड्स, आप टोमेटो कैरी कर रहे हो और सम हार्ड गुड्स कैरी कर रहे हो। अगर आप टोमेटो को नीचे रख दिया, हार्ड गुड्स को उसको ऊपर रख दिया, तो क्या होगा? टोमेटो खराब हो जाएगा सारे। सपोज आप मार्केट जा रहे हो, सब्जी वब्जी लेके आ रहे हो, घर में क्या बोलते हैं, सारा कुछ खरीद लेना, उसका टमाटो रखना, या उसके बाद ग्रेप्स रखना। जो चीज थोड़ा प्रेस में खराब हो सकते हैं, उसको ऊपर रखो, सो दैट इट विल नॉट बी वेस्टेड। सो इन कन्वेंशनल शिपिंग यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स, कि जो सामान खराब होने का चांस है वो ऊपर रहे, जो हेवी सामान है वो नीचे रहे। ये सारे थिंग आपको कन्वेंशनल शिपिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि कंटेनरेशन में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सामान कंटेनर में रहेगा। आप कंटेनर को कहीं पे लोड करो, कहीं पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन कन्वेंशनल शिपिंग these things you have to take into consideration, or these are the limitation of conventional shipping. The fast delay in port and affect fast trade, मैं बोला था, अगर आप पहले सामान, जो पहले बंदा उतरेगा पानी कोयले में, उसको आप अगर पीछे लेके रखोगे, तो सामान you have to get unload in fast port. If you load it in last room or last apartment, then you have to wait till all the goods are unloaded, then the last thing will be unloaded, then again load, it will take time. क्योंकि जो आगे वाला सामान है वो बिना अनलोड किए गए आप पीछे वाला सामान लोड नहीं कर सकते। सपोज बस फुल है, जो पानी कोयल का बंदा क्या है, पीछे ही खड़ा है, तो आइदर यू हैव टू साइड ऑल द पैसेंजर्स, और यू विल टेल all passenger get down, and this passenger will get down at Panikoili, then passenger will again get in, then bus will start. Similarly this kind of port, अगर आप सारे सामान को एक फास्ट पोर्ट में जो सामान उतरेगा उसको आप पीछे रखे हो, then you have to unload all the goods, then again load, then it will take time. This is loading unloading part will costly, it will take a higher cost. Then special attention means if you are transporting both soft and hard goods in one ship, then you have to take care of that soft things, that otherwise soft things will be under the hard goods and it will be wasted. Frequent damage, ये जो कन्वेंशनल शिप है जहाँ पे देयर इज नो कंटेनर, डैमेज होने का चांस बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस प्रीमियम टू हाई, दो द चांस ऑफ डैमेज इज टू हाई, इंश्योरेंस कंपनीज आर चार्जिंग टू हाई प्रीमियम। पिलीफरेबेज, लोग चोरी करने का भी चांस रहता है। लोग आएंगे, बोट खड़ा है, पुनः शिप खड़ा है पोर्ट के पास, कुछ सामान उठा के लेके चले गए, देयर इज नो कंटेनर, नथिंग। ये हो गया लिमिटेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस नीड तुम्हारा कंटेनराइजेशन मार्केट में आया। उसके बाद हो गया डायमेंशन ऑफ कंटेनर्स। डायमेंशन ऑफ कंटेनर्स क्या होता है, मतलब कंटेनर का साइज कितना होना चाहिए। व्हाई दिस साइज इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक कंटेनर अगर आप इंडिया में इतना बड़ा बना दो जो कि फॉरेन जाके रोड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, देन देयर इज नो बेनिफिट। अगर हम स्टैंडर्ड ट्रक का साइज नहीं रखेंगे, जो कि हम ब्रिज बना रहे हैं, रेलवे ब्रिज बन रहा है हाईवे के ऊपर, उसका एक एवरेज हाइट है। किसी ट्रक का अगर हाइट बहुत ज्यादा है, वो वहां पे जा नहीं सकता। इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ साइज चाहिए, so that a container wherever the container will go, it will be easily transported. So इसीलिए in worldwide the ISI give a container size, इससे ज्यादा container size नहीं हो सकता, so that there will be size of uniformity will be maintained and it will be transported all over the world. Then हो गया advantages of containerization। containerization का advantage क्या है, ये सब पढ़ा हुआ है। सेविंग इन हैंडलिंग कॉस्ट, इतना लोड होने की जरूरत नहीं है।
डोर टू डोर कंटेनर पे लेकर डोर में डाल दो, डोर टू डोर डिलीवरी। सेविंग इन पोर्ट चार्जेस, पोर्ट में इतना खर्चा नहीं होगा। रिलायबल एंड क्विक डिलीवरी। ये सब वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिडक्शन, रिडक्शन इन पैकिंग कॉस्ट, reduction of insurance cost, reduction in documentation. All these are advantages to shipper. Shipper means the person who will give the goods to be transport. अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सामान ट्रांसपोर्ट हो, मैं हो गया शिपर, ये मेरा सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है। Then any doubt on this advantages already discussed, so that's why I'm skipping all these points. Any if you want me to elaborate on any point, tell me, I will elaborate. If anybody want me to elaborate on any point given in the slides, tell me, I will elaborate. Otherwise, I will go. No doubt, sir. Okay. वो एडवांटेजेस था शिपर के लिए, ये एडवांटेजेस हो गया शिप ओनर के लिए। जो शिप ओनर है उसको क्या कंटेनर में कॉस्ट रिडक्शन होगा, जो कार्गो जाएगा, जो कमोडिटी जाएगा, उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा। देन इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम, मतलब कन्वेंशनल कार्गो में जहां बहुत दिन लगता था शिप जाके पोर्ट में सामान उतार के आने के लिए, यहाँ पे वो जो टर्न अराउंड टाइम है, जाने आने का टाइम है, वो कम हो जाएगा। Previously, suppose in conventional cargo it will take 15 days to go, now it will come to 7 days। मतलब ये 15 days में जाके एक दो बार जाके आ सकता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्रूव टर्न। So then comes disadvantages of container. Now we already discussed the advantages of containerization, then called disadvantages. First disadvantage is capital intensive. Capital intensive means for building or for making containers you need heavy cost। बस कंटेनर क्या एक पूरा कवर है सामान भेजने का। और जो जैसे ट्रेन में जाता है आपने देखा होगा कंटेनर, बस में जाता है, ट्रक में जाता है कंटेनर, सब आपने देखा होगा कैसा होता है, कितना बड़ा साइज होता है, कैसे आयरन का या स्टील का बनाया हुआ होता है। कैपिटल इंटेंसिव, उसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, यू नीड कैपिटल। देन इफेक्टिव ट्रैकिंग, अगर आप कंटेनर को ट्रैकिंग करना चाहते हो, देन यू नीड EDI, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यू नीड टू ट्रैक दोज कंटेनर्स। अगर आपको पता ट्रैक करना है कंटेनर कहाँ पहुंचा है, कहाँ रखा है, कहाँ, उस सबको ट्रैक करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज चाहिए। उसके बाद लेबर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया तुम्हारा एक सोशल कॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कंटेनर तुम्हारा जो पहले जो क्या होता था, लोडिंग अनलोडिंग लेबर करते थे, तो दे आर एम्प्लॉयड। ये बिकॉज ऑफ दिस कंटेनर there is no need of the need of labor is very much reduced, so it will lead to unemployment, that is called labor displacement। means जो पहले लेबर जो काम करते थे, जो पहले लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री था लोडिंग अनलोडिंग, अभी क्या है वो लोडिंग अनलोडिंग क्या हो गया, सब कैपिटल इंटेंसिव हो गया। अब मशीन करता है सब, इसीलिए क्या हो गया, लेबर ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन, अब जब मैं वो बोला था आपको, अगर आप इतना बड़ा कंटेनर बना दिए जो कि रोड में जा नहीं सकता, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो यू हैव टू टेक केयर द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल्स रेगुलेशन। मींस अगर कंटेनर बना रहे हो, वो कंटेनर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कैसे जा सकता है इजीली, दैट यू हैव टू टेक केयर। सो दैट यू हैव टू टेक केयर द रोड ट्रैफिक रेगुलेशन, क्या कितना बोलता है, कितना बड़ा साइज कंटेनर होना चाहिए, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। Any doubt on this? Any doubt on these disadvantages? No, sir. Okay. Because of the development of containerization, the earlier law
which define the liability of the ship owners and shippers are become obsolete. जो पहले लॉ था कैरेज ऑफ सी गुड्स एक्ट 1924, ये जो कॉन्टेनराइजेशन के आने की वजह से ये जो डिफाइन कर रहा था लाइबिलिटी किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऑब्सोलेट हो गया. मतलब वो उसका जो रूल था वो भी वो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्टेनराइजेशन. अभी क्या एप्लीकेबल है ना, ब्रुसेल्स प्रोटोकॉल ऑफ 1968 which comes into force in जून 1997. यहाँ पे जो नया बनाया गया ब्रुसेल प्रोटोकॉल, उसमें सबका रूल्स रेगुलेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया. किसका, शिप ओनर का क्या है, सी कंटेनर का क्या है, सबका फिक्स किया गया. अर्लियर जो 1924 एक्ट था वो था बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कंटेनराइजेशन. तो कंटेनर के होने की वजह से सम चेंजेस हैपेंड. सो ये नया ब्रुसेल कन्वेंशन किया गया so that there will be no the fixing of responsibility and rules regulation responsibility. Then requirement of shipper. जब कोई पर्सन want to transport his goods in a ship, उसको वो क्या देखेगा. Suppose I want to transfer my goods in a ship from Paradip to Chennai. What I will look into, मेरे को क्या क्या चीज देखना है. फर्स्ट इज सिलेक्टिंग प्रॉपर कंटेनर. मेरे को कंटेनर चेक करना है कि ये कंटेनर जो है इज इट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग माय गुड्स और इन दिस कंटेनर इज माय गुड्स विल बी सेफ. ये मेरे को चेक करना है. तापर कंटेनर सर्विस, दिस शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर इज इट रिलायबल, और ये सामान लेके कहीं बेच देगा. इज दिस शिपिंग सर्विस रिलायबल. देखो सपोज आप एयर में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप देखेंगे सपोज ऑप्शन रहेगा इंडिगो एंड एयरलाइन, इंडिगो एंड एयर इंडिया. तो बोलोगे यार एयर इंडिया तो अभी ठीक से चल नहीं रहा, तो देन वी विल गो फॉर इंडिगो. बिकॉज एट द टाइम ऑफ टेकिंग सर्विस यू वांट टू मेक श्योर दैट द सर्विस मस्ट बी रिलायबल. देन इंस्पेक्शन द कंटेनर. कंटेनर को बोला आके देखना है हैंडल कर पाया कि नहीं, गुड्स को ये सेफ है कि नहीं, एवरीथिंग. प्रॉपर पैकिंग, जो गुड्स जाएगा हमारा वो दैट शुड बी इन प्रॉपर पैकिंग. प्रॉपर पैकिंग हुआ कि नहीं, इसको चेक करना है. प्रिवेंट डैमेज, ये जो पैकिंग हो रहा है जो कंटेनर में जा रहा है इज इट प्रोटेक्टिव टू सेव फ्रॉम डैमेज. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये जो कंटेनर में जा रहा है एवरीथिंग इज साइन डॉक्यूमेंट दिया, जो लेके जा रहा है वो मेरे को रिसिप्ट दे रहा है कि नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है कि नहीं, एवरीथिंग एवरी डॉक्यूमेंटेशन. देन टाइमली अनलोडिंग. ये जो सामान मैं कंटेनर में पे कर रहा हूँ, जितना मैंने टाइम दिया है वो विद इन दैट टाइम दिस गुड्स विल रीच और नॉट. बिकॉज नाउ बिजनेस इज ऑल अबाउट टाइम, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर इन टाइम ऑन टाइम. If you will not deliver in time, then nobody will ask you. So these are the requirement of shipper. Then type of container. फर्स्ट हो गया स्टैंडर्ड ड्राई कार्गो कंटेनर. इसमें क्या है, जनरल गुड्स जाते हैं, ये हो गया स्टैंडर्ड हो गया. ये मतलब दिस गुड्स विदाउट ड्राई गुड्स such as leather, food grains, all those general kind of goods are transported. These are some features of dry cargo container built as per specification. ये जो कंटेनर होता है, जो मैंने पहले बोला था ISO स्पेसिफाई करता है कि व्हाट शुड बी साइज ऑफ द कंटेनर, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द कंटेनर. सो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिकेशन ये कंटेनर बनता है. approved by classification society. Similarly, when a ship is approved by classification society, I already explained what is the classification society. This container will be also approved by classification society. Technological conformity means the technological competence needed in a container that should be properly made. जो टेक्नोलॉजिकल चीज रहना चाहिए उस कंटेनर में, वो that should be
made, otherwise it will be difficult to do और डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। ये जो टेक्नोलॉजिकल कॉन्फर्मिटी है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करते हैं, एक हो गया टीआईआर, एक हो गया ट्रिपल सी। पहला हो गया इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि जेनेवा में हुआ था 1975 में। ये कन्वेंशन हुआ था, ये स्पेसिफाई किया था क्या ना, ये कंटेनर में दिस टेक्नोलॉजी मस्ट बी फिटेड। ये होगा टेक्नोलॉजी का कन्फर्मिटी। देन हो गया सेफ्टी स्टैंडर्ड, ईच कंटेनर शुड बी इक्विप्ड विथ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। उसमें जो गुड्स सेफ रहेगा उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लिया गया होगा। लैसिंग रिंग्स मतलब जो ताला डालने के लिए जो रिंग होता है प्रॉपर, जिसमें ताला तोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं लास्टिंग रिंग्स, इज प्रॉपर्ली फिटेड एंड प्रॉपर्ली टाइट सो दैट देयर विल बी नो थेफ्ट एंड नथिंग। हाई क्वालिटी मटेरियल, ये जो स्टैंडर्ड कार्गो है इसमें स्टेनलेस स्टील हो और वेदर हो, कैनवास हो, जो भी लगा हो मींस द मटेरियल इन व्हिच दिस कंटेनर वाज बिल्ट is of proper quality, because if it is not proper quality, then your goods will be chance of destruction. Then it should be strong, this container, because container एक ट्रांसपोर्ट में जाएगा, दूसरे में लोड होगा, दूसरे में जाएगा, it should be strong, otherwise it will be broken in middle. Maximum load is indicated, मतलब ये जो कंटेनर है इसमें लिखा जा सकता है। अगर आप एक मालवाही ट्रेन को चेक करेंगे, उसमें देखेंगे लिखा होगा 32 टन। एवरी कंटेनर इज मार्क्ड विथ द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट that container can carry. Is it clear? Yes, sir. Now this refrigerator container, I will not discuss one by one each point one by one. Kindly go through the points I have already mentioned in the slides. If any doubt on any point, then I will explain to you. It is very easy points, so there is no need of explaining one by one. It will take much more time. Kindly, all of you who are looking into the slides, go through these. Okay, sir. Any doubt on any point, I will explain to you. No issue. That in that case, I will not look into time. All of you gone through it? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Only one person responding. Another those who are online, please respond. If you have any doubt, then ask. All of you, please respond. If you have any doubt, ask. Otherwise, I will go ahead. No, sir. Okay. Then one is your flat rack container, another one is your open top container. I have, from your book, I have made small points so that you can easily remember and easily understood. So also go through these 2 points. In flat rack container, there is no roof and side wall. उसमें roof नहीं होगा, side wall नहीं होगा, और क्वालिटी फ्लोरिंग होगा। मतलब जो सामान नीचे रखा जाएगा उसको अगर फ्लोरिंग क्वालिटी ना हो और फ्लोरिंग टूट जाए, then it will not happen. So flooring should be, the quality of flooring would be good in flat rack container. Then open top container, जिसका पास open top container means the container which has no roof. इसमें क्या होगा, ऊपर जो रूफ के बदले क्या होगा, कैनवास होगा। तो कैनवास मतलब एक पट्टी जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में, कैनवास पट्टी टाइप का होता है, बड़ा पॉलिथीन टाइप का, वो डाला हुआ होगा। और स्ट्रॉन्ग लास्टिंग, बांधने के लिए प्रॉपर जो ये होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, सो दैट nobody can take it away. Any doubt? Then tank container. All of you go through these points I have mentioned in tank container. Tank container is used for liquid and gas. It is quite obvious.
लोडिंग डिवाइस, कार्गो मेजरिंग स्केल, लोडिंग जो टैंक हो, टैंक होल टैंक टाइप ऑफ टैंक कंटेनर में क्या होगा, इसमें लोडिंग डिवाइस होगा, जो कार्गो मापने वाली जो मेजरिंग स्केल है, जो उसका नीचे वॉल्व लगा हुआ होगा, उसके अंदर एक इक्विपमेंट होगा जो कि बताएगा कि कितना क्वांटिटी हुआ उसमें। और ऊपर क्या होगा, एक बड़ा मतलब ऑन द टॉप ऑफ द कंटेनर देयर इज ए बिग होल, on that way your liquid will be loaded into that। नीचे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वॉल्व होगा फॉर अनलोडिंग, मतलब ऊपर से लोड होगा, नीचे से जो उसका जो कंटेनर के नीचे से थोड़ा सा वॉल्व होगा अनलोड होने के लिए। थर्मल इंसुलेशन मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए प्रॉपर थर्मल देके चारों तरफ सील किया होगा, अदरवाइज ये, और गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, अगर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो क्या होगा, फट भी सकता है वो, दैट इज चांस ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन और कैचेस फायर। देन डेंजरस मटेरियल मीन्स ओनली इन फ्lammable goods, so the gas liquid are transported through it। then modalism, and intermodalism means transportation of international containers from shipper to consignee। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेशनल गुड ट्रांसफर होगा फ्रॉम द शिपर टू द कंसाइनी इन वन रिसिप्ट, मतलब एक कैरियर, I explained it earlier also, I want to transfer it from goods from Odisha to Australia, I from Bhadrak to Australia, I give charge to a carrier, carrier will take, he will first use road transport from Bhadrak to Paradip, then ocean transport। So in this two transport has been used, only one person who is taking responsibility of sending goods from seaport to consignee। मेरा वो हेडेक नहीं, वो कैसे ले क्या करे, वो मेरा सामान यहाँ से लेके वहां पहुंचना चाहिए, दैट मीन दैट पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट। इकोनॉमिक मोड such as road, rail, water and air, ये एनी मोड कैन बी यूटिलाइज्ड। जो ट्रांसपोर्ट मेरे को इकोनॉमिक आएगा, मतलब कॉस्ट कम होगा, दैट ट्रांसपोर्ट कैन बी यूटिलाइज्ड। कंटिन्यूअस फ्लो, कहीं गाड़ी रुकेगा नहीं, मतलब कहीं सामान लोड अनलोड, एक तो कंटेनर में सामान होगा, लोडिंग अनलोडिंग का झंझट नहीं, तो डायरेक्टली इट विल गो टू फ्रॉम भद्रक टू बाय रोड, पारादीप टू बाय पोर्ट, सिंगल रेट। वो जो कैरियर को मैं दूंगा, दो कैरियर विल गिव मी दिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मेरे को बताएगा कि हाँ भद्रक से ऑस्ट्रेलिया मेरे को 15 लाख चाहिए। वो ऐसे नहीं बताएगा कि मैं भद्रक से पारादीप जाऊंगा रोड में, मेरे को 5,000 रुपया दो, फिर वहां से इतना, ओनली सिंगल रेट। मेरे को सामान, आई वांट टू ट्रांसपोर्ट माई गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ओनली सिंगल रेट। हाउ व्हाट रेट इट विल टेक, हाउ ही विल ट्रांसपोर्ट, दैट इज हिज हेडेक, I don't take into consideration that part। No tension for transfer of goods from one place to another, one mode to another। जो क्यों नहीं है ये, क्यों टेंशन नहीं होगा, दो, because it is in container, so any from one mode to another mode it can easily transported, so there is no tension of transportation। देन आ गया मल्टीमोडल। मल्टीमोडल में क्या होता है, यूज एटलीस्ट टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपको एटलीस्ट दो मोड, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, दैट मे बी रोड, रेल ओशन, रोड एयर, रेल एयर, मे बी एनीथिंग। The important point is your just JET, means just in time, means the transportation will be in a fast mode। Here the first objective is to send the goods with a fast speed, means ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बहुत, you are taking much more time, no, first objective how you can take less time for transportation। In this case also like intermodal, transportation of goods from seaport to consignee, मतलब एक जगह से पूरा कंसाइनी के घर तक सामान पहुंचाने का जिम्मेदारी मल्टीमोडल में भी है। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, the objective is to minimize cost also, to reduce time gap also।
because it is minimize time or it is facilitate transportation at a high speed, they will charge more. अगर मेरे आपको कम टाइम में पहुंचाना है, then it will charge more as compared to inter modalism. Then saving in total time and convenience. ये जो customers are ready to pay high freight because यहाँ पे जो times यहाँ पे multimodal में क्या हो रहा है, it multimodal saves time also and it gives you convenience also. Because of saving time, shipper is ready to pay higher charges. मेरा time कम खर्चा हो रहा है, so I will pay you higher charges. Advantages multimodalism का क्या है? Reduction in cost, that all of you know. Cost का reduction होगा. Then faster cargo flow, जो time कम लगेगा, means you can easily transport the goods from one place to another with less time. Then because of this less time, less cost, your export will increases. Then because of containerization, there will be reduction of uncertainty, because one person is responsible for transporting the goods from one place to another place. One responsibility lies in the head of one person. There is less uncertainty regarding this. Then optimum utilization of national infrastructure. इसमें क्या होगा, मल्टीमोडल में और इंटरमोडल में आपका जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल है, आपका रेल हो गया, रोड हो गया, सबका क्या होगा, आप सबका यूज कर सकते हो in multimodal transportation. Then another point was land bridging. In your book there is one paragraph is land bridging. Land bridging means it is a part of intermodal integrated transport system. Land bridging basically means the part of goods can be transported through road that can be otherwise be transported through ocean transport. जो सामान ओशन ट्रांसपोर्ट में ओशन ट्रांसपोर्ट यूज हो सकता था, उसके लिए अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मिनिमाइज टाइम, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रिजिंग. सपोज हमें कलकत्ता से सामान भेजना है ऑस्ट्रेलिया, you can take the help of Paradip port to Calcutta, or you can take directly by road from this Bhubaneswar to Calcutta. So if you use this road instead of ocean, then it is called land bridging. Means you are utilizing the road facility to transport the goods to save cost and to minimize time. This is called land bridging. The purpose of transportation through land bridges is to achieve saving in transportation cost and reduction in international transit time. ये जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है उसको कम करना और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए ये कि कुछ रोड में यूज किया जा सकता है. ये क्या करता है रोड, और इसमें क्या है ना, जो those places who are not connected by ocean, जहाँ पे ओशन कनेक्टिविटी नहीं है, वो they will get the benefit of this land bridging. सपोज एक जगह पे ओशन नहीं है, पोर्ट नहीं है, उस जगह पे रोड ट्रांसपोर्ट है, उस जगह पे क्या हो सकता है ना, they can get the benefit of land bridging and export the goods through road. These are the concept of land bridging. Your unit 8 is over. Okay, sir. Then your unit 9, that is world seaborne trade and world shipping. This is only theory, only development of shipping, only data, nothing to make you understand. So kindly go through it.
and read it. If you need any doubt, then I will make you understand. Okay. I will directly go. I will directly go for unit 10 when I will take the next class. Uh, okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. you, sir. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.